सर्व क्लबचे सदस्य व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्सने सहकार्य करून माझी निवड साफ ठरवली। पहिल्या 2 महिन्याच्या कार्याची पावती म्हणून त्या वर्षीच्या डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर रोटरियन CA व्यंकटेश चन्ना सरांनी आमच्या क्लबला 3 वेगवेगळे पुरस्कार देऊन आमचा उत्साह वाढवला। तसेच त्यांनी क्लबच्या स्थापनेत देखील मोलाचे सहकार्य केले। त्यानंतर 2018-19 या वर्षासाठी देखील मला अध्यक्षपद कंटिन्यू केले। वर्षाची सुरुवात आम्ही वृक्षारोपण आणि प्रोफेशनल डे असे अनेक समाजोपयोगी विविध उपक्रम करण्यात आले होते। या विविध उपक्रम करण्यासाठी आमच्या क्लबचे GSI रोटरियन राकेश उदगिरी आणि माझ्या सर्व क्लब संचालक सदस्य तसं फारसं भेटलेलं नाही आहे। त्यांचा बायोडेटा थोडक्यात माझ्याकडे इथे आहे, परंतु मला असं वाटतं की त्यांची ओळख आत्ता ते आल्यानंतर एक 5 मिनिटांच्या सहयोगातून त्यांच्याशी जी चर्चा झाली त्यामधून खूप सार्थ ठरते।
मी जाता जाता त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची जी काही वैशिष्ट्ये आहेत की जी मला थोड्या कालावधीत जाणवली आणि माझ्या बायोडेटामध्ये त्यांच्या बायोडेटामध्ये मला वाचायला मिळत आहेत, ते आपणासमोर मुद्दाम वाचून दाखवतो. हा बायोडेटा थोडासा इंग्लिशमध्ये आहे, त्यामुळे मी त्याचं वाचन इंग्लिशमध्येच करतो आणि इंग्लिशमध्येच त्याच्याबद्दलची माहिती देतो. माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस DG Rotarian Harish Motwani ji. Actually, he is hailing from a cultural and Blith family with high moral and ethical values. In fact, I know that many of the values are rightly inculcated and also prospered through being a member or through being a part of Rotary membership. Rotarian past President Harish Motwani had the ideal surrounding at home to grow up from a Spartan kid to a business leader in his field of work and an esteemed member of the society. The ever-smiling and mild-mannered Rotarian Harish has carved out of his own space and achieved what he has in life by sheer dint of hard work, passion, perseverance, and patience. I could observe so much of his values, so much of his expressions, so much of his manners and etiquettes, the way he had been in little while before the beginning of this ceremony. Grocery retail being the traditional business of his family, Rotarian Harish set out to create a world of his own. After completing the education, he started with a capital of 10,000 rupees and his business acumen, exemplary reputation and continuous efforts led to a steady growth, and today he heads his successful business and its all wings named Priya Medical Stores, Pratik Enterprises and Genia Medi Sciences. Rotarian Harish joined Rotary in 1997 and living Rotary by all means. It is a matter of pleasure to cite here that a member who has been working for such a long period obviously not is being treated as a Rotary member alone, but I know that on all platforms of life he becomes a Rotary member, and on all platforms of Rotary he behaves in life. Rotarian Harish joined Rotary in 1997. So for such a long experience, I know what sort of values, cultures and ethics would have been inculcated in him. In the district, he was served in all major avenues and committees. Its corollary, Rotarian Harish became a level 1 major donor and simultaneously proved his enthusiastic participation in RFE team at Mexico in March 2017. Being a proud Rotarian from Bede, where a high energy and dedicated Rotary culture is well maintained, that is what we have also experienced in a meeting that was organized last year during the month of August. As a core part of District 3132, the concept of district in Rotary is rather different than our usual concept. This Rotary District 3132 comprises of 11 districts. Rotarian Harish gained an ideographic soft image of a true, tender, soft-spoken friend, as well as a dedicated and reliable Rotarian in the district, and thus the horizon is inviting him to lead and serve the Rotary. Socially, Rotarian Harish is a Joint Secretary of Sindhi Council of India, also is President of SHD Mandal Bede, which is engaged in social activities. He is a member of Bede District Chemist and Druggist Association. I think it was my proud pleasure, Motwani sir, it was my proud pleasure to introduce to you, and in the times to come, I expect to have very positive association of our club
especially myself and our leaders too. And we would like to grow along with you. We would be a part of member of responsible teams of this Rotary group, serving towards the very motto which have been placed by Rotary International. With this, I introduce and conclude his introduction. Thank you. डॉक्टर सुनील गोविंदे सरांना विनंती करतो की अजून काही मेंबर्सचा सत्कार करायचा आहे रोटरियन्सचा. रोटरियन सुनील तोष्णवाल, रोटरियन सुनील अग्रवाल, रोटरियन वेंकटेश सोमानी, and in the hall. This is my great pleasure to introduce Mr. Rotarian Rakesh Udgiri sir, who is appointed as Assistant Governor for 2019 and 20. उदगिरी सरांबद्दल सांगायचं म्हणजे तर काय, सगळ्यात चांगले आणि नेहमी कॉपरेट करणारे आमचे ग्रुपचे स्पॉन्सरच पण आहेत. आता त्यांचे डिटेल्स मी तुम्हाला सांगतो. रोटरियन राकेश उदगिरी इज बॉर्न अँड ब्रॉट अप ॲट सोलापूर. Rotarian Rakesh Udgiri is a graduate from Commerce stream and is working as a senior advisor for Life Insurance Corporation of India since last 25 years. He is having long experience in sales, marketing and administration also. He is also Chief Life Insurance Advisor. He has been recognized with more than 60 awards till date, prominently is award in financial planning from Chartered Insurance Institute London, $1 Million Roundtable USA and Chairman's Club LIC of India. He is an active member of Rotary Club of Solapur Northeast since last 14 years and also has worked as director in various avenues at club level. He served as the president in the year 2014 and 15 and initiated number of activities and projects numbering more than hundreds, namely Paryatana tour and travel exhibition where more than 10,000 visitors were present, and ZEP the Flying Festival, the biggest air show of India, where more than 1 lakh people visited the event, Rotary Day celebration, zonal sports meets, etc. He is recipients of 14 district awards in his presidential tenure, like district governor, first award for membership development and entire district for growth in membership, second prize in public image, the Rotary Day celebration. He shouldered various district assignments like associate director, district secretary. He has also formed a Rotary Club of Solapur Siddhigram, which is our club, and has been deputed as an assistant governor. He is happily married with Ranjita, who is also a Rotarian. Annette Raki and Annette Ritesh are in their high school education. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर रोटरियन सुनील गोविंदे सर. मी रोटरियन चेतनना विनंती करतो की पुढील वर्षाचे अध्यक्ष रोटरियन अमर उदगिरी यांचा परिचय करून द्यावा. अमर आणि मी जवळपास 6-7 वर्षापासून आम्ही एकत्रित मिळून काम करतो. तर मागच्या वर्षापासून म्हणजे रोटरॅकपासून आम्ही मिळून जास्त क्लोज झालो. तर अमरचा जन्म हा सोलापूरमध्ये झालेला आहे आणि त्याचं शालेय आणि कॉलेज देखील सोलापूरमधून केलेलं आहे. तर त्यांचं तंत्रज्ञानाचं जे प्रशिक्षण आहे तर ते चीप लेवल लॅपटॉप कॉम्प्युटर कोर्स हे मुंबई येथून पूर्ण केलेलं आहे. तर आता सध्या त्यांनी गुरु कॉम्प्युटर हे आता सुसज्ज आणि गेल्या 8 वर्षापासून खूप चांगल्या पद्धतीने ते कार्यरत करत आहेत. आणि रोटरॅकचे प्रेसिडेंट म्हणून सुद्धा काम केलेलं आहे. 2015 आणि 16चे ते प्रेसिडेंट होते व ते रोटरॅक क्लब ऑफ सोलापूर सुजनचे व्यवस्थित पदभारसुद्धा सांभाळलेले आहेत. आणि रोटरी क्लब ऑफ सोलापूर सिद्धिग्रामचे ते संस्थापकीय सदस्य तसेच सचिव म्हणून कामसुद्धा केलेलं आहे. आणि हे रोटरॅकमध्ये असे काम करत असतानासुद्धा ते तोगटवीर शिक्षण संस्थेमध्ये सध्या संचालक म्हणूनसुद्धा काम करत आहेत. आणि त्यांच्या धर्मपत्नी लक्ष्मी हे उत्तम रीतीने त्यांचा साथ देत आहेत. आणि त्यांच्या पाठीमागे आजी, आई, भाऊ, बहीण असा हा त्यांचा परिवार आहे. आणि मला त्यांचं इंट्रोड्यूस करण्यासाठी इथं बोलवलात त्यासाठी रोटरॅकसुद्धा मी
आभारी आहे. धन्यवाद. यापुढं रोटरियन विजयकुमार शिंदे यांना विनंती करतो की त्यांनी यावर्षीचे सेक्रेटरी रोटरियन शिवानंद हिरेमठ साहेबांचा परिचय करून द्यावा. मी माझे मित्र शिवानंद हिरेमठ सरांचा तुम्हाला थोडक्यात परिचय करून देतो आहे. रोटरियन शिवानंद हिरेमठ आणि मी कॉलेज जीवनापासून म्हणण्यापेक्षा माध्यमिक जीवनापासून आम्ही एकत्रच मित्र आहोत आणि त्यांना सामाजिक जीवनाची सामाजिक कार्याची खूप आवड आहे पहिल्यापासूनच. त्यामुळं आमचं शिक्षण हे 10वीपर्यंत दोघांचंही सांगोल्याला झालं. म्हणजे मुळात रोटरियन शिवानंद हिरेमठ यांचं शिक्षणही सांगोला महाविद्यालयामध्ये झालेलं आहे. त्यानंतर त्यांनी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशनमध्ये कुमठ्यामध्ये SPM कॉलिटेक कुमठा इथून केलेला आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंगमध्ये डिग्री हा निलंगा इंजिनिअरिंग कॉलेजमधून कंप्लीट केलेला आहे. डिग्री कंप्लीट केल्यानंतर त्यांनी काही वर्ष झेरॉक्स इंडिया लिमिटेडमध्ये काही वर्ष सेल्स आणि सर्व्हिसचं काम केलेलं आहे. त्यानंतर त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय गुरुकृपा कॉर्पोरेशन या नावाने चालू केलेलं आहे. तिथं ते ऑफिस ऑटोमेशनचं जे प्रोडक्ट आहे त्याचं सेल्स आणि सर्व्हिस हे करतात. मॅक्झिमम त्यांचा जो कस्टमरचा जो काय म्हणतो आपण त्याला कस्टमर्स आहेत त्यांचे ते गव्हर्मेंट कस्टमर आहेत. म्हणजे ॲज अ ते गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून काम करतात. आणि त्यांच्या परिवारामध्ये त्यांची पत्नी उमा आणि त्यांची 2 मुली अनुष्का आणि आनंदी ह्या दोघी आहेत. थँक्यू. धन्यवाद शिंदे साहेब. मी रोटरियन डॉक्टर सुनील गोविंदे यांना विनंती करतो की आपले रोटरियन श्री मुलिक सर DAV कॉलेज त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करावा. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 2018 आणि 19 प्रथमच वर्ष आमचा रोटरी क्लबचा. तर आमचे संस्थापकीय अध्यक्ष ह्यांना पण म्हणजे रोटरीचं काही पण न नॉलेज असता त्यांनी अतिशय सुंदर म्हणजे खूप जबाबदारीने त्यांनी 1 वर्ष पार पाडलेलं आहे. तर फक्त मी उपस्थित असलेले मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांचं एक बुके देऊन सत्कार करायला पाहिजे. तर मी मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांना बुके देऊन त्यांचा सत्कार करावा. प्रेसिडेंट म्हणून जे जबाबदारी माझ्या क्लबने किंवा BOD आणि मेंबरने जे माझ्यावर जबाबदारी दिलेली आहे ते मी खूप छान प्रमाणे आणि जबाबदारीने नक्की पार पाडेल. आणि त्यासाठी मला प्रत्येक मेंबर आणि BODचं सपोर्ट असणारच आहे. त्यानंतर आमचे क्लबचे GSR राकेश सर आणि प्लस AG यांचाही सपोर्ट भरपूर असणार आहे. तर मी फक्त रोटरीमध्ये हा जस्ट 2रा वर्ष आहे माझा. त्याआधी मी रोटरॅक म्हणून काम केलेलं होतं. आता रोटरी म्हणून जस्ट 2रा वर्ष माझं
चालू आहे. तर या म्हणजे 2019 आणि 20 ह्यामध्ये मी एक फ्युचर प्लॅन तयार केलेला आहे. एका वर्षभरात मी काय काय करणार आहे म्हणून. तर त्याआधी मी BODचे इंट्रोडक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ह्यांचं मी इथं माहिती देतो. तर मी मान्यवरांना विनंती करतो की प्रत्येक त्यांनी BOD डायरेक्टरांना पिनअप करावे, उपस्थित असलेले मान्यवर. तर प्रथम ट्रेझरर म्हणून विजयकुमार शिंदे. वॉटर टँक डोनेशन, त्यानंतर चाइल्ड मेंटल हेल्थ अवेअरनेस, त्यानंतर डेव्हलपमेंट इन स्कूल्स, त्यानंतर वर्षभरात जवळपास 500 ट्री लावायचे या वर्षभरात. त्यानंतर स्कूलमध्ये एज्युकेशन मटेरियल डिस्ट्रीब्युशन करायचं आहे. त्यानंतर मोठ्या स्वरूपात डेंटल चेकअप घ्यायचं आहे. त्यानंतर वुमन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, त्यानंतर जयपूर फूड कॅम्प आणि पोलिओ रॅली, वॉश इन स्कूल आणि सेव्ह चार्गर्ड अवेअरनेस आणि कम्युनिटी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स आणि आय चेकअप कॅम्प हे असे जवळपास ह्या वर्षभरात करायचे आहेत. त्यासाठी BOD क्लब मेंबर यांचा भरपूर सपोर्ट हवा आहे मला. तर यानंतर मी क्लबचे AG रोटरियन राकेश उदगिरी सर यांना विनंती करते की त्यांनी 2 शब्द मनोगतावर बोलावे. रोटरियन हरीशभाई मोटवानी, आउटगोइंग प्रेसिडेंट आशिष उपाध्याय, इनकमिंग प्रेसिडेंट अमर उदगिरी, तसेच इनकमिंग सेक्रेटरी शिवानंद हिरेमठ, उपस्थित सर्व माझ्या इतर क्लबचे रोटरी मित्र, रोटरी मेंबर्स अँड ॲनेट्स, इन्व्हायटीज आणि इतर गेस्ट. AG म्हणून आज मी डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नरचा मेसेज कन्वे करण्यासाठी आपल्यासमोर उभा आहे.
ह्या वर्षीचे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर रोटरियन सुहास वैद्यने इंग्रजीतून एक मेसेज तुमच्या क्लबला पाठवलेला आहे. A warm greetings to all presidents, secretaries, district officers, dignitaries, invitees, guests and members of different Rotary clubs present today. Your club has trusted Rotarian Amar Udgiri as Honorable President and Rotarian Shivanand Hiremet as Secretary, and his August Board of Directors for the year 2019 and 20. I consider myself proud and lucky to have such a wonderful leader and the proactive directorial board. An organization flourishes and could achieve its goals if each and every member participates and cares for it. A Rotary year of any president will become successful if he gets involvement and support of all his club members. This is going to be a teamwork, and I expect you all will get involved in the club activities wholeheartedly. For the whole year, stay connected with the society, be in the society and spread the word of Rotary. Needy and beneficiaries should feel connected with us. Be compassionate with the society, understand their need, then only you will know the beneficiaries. Rotary is for the service to society, and it is for service above self. Have society at the center for all your project planning. Enrich by donating is a universal truth. Experience it by donating till it hurts somewhere. With a smile it generates, you will cherish this experience for your lifetime. You are blessed with the opportunity because you are members of international organization like Rotary. Enjoy it. I am aware about the plans of President and Board of Directors for the projects and yearly programs. I am confident that you all will assist him and the board. Feel free to contact me personally or any of my team members in case you need any assistance for any of your projects. We will be more happy to assist you. I appeal everyone to be alert and aware about the image Rotary carries in the society. Try to spread and publicize the work of Rotary to each and every part of the society. Dedicate the coming year for the society. Our organization is the organization of professionals. Ensure that all programs are managed professionally. Rotary International President Rotarian Mark Maloney has stressed on Grow Rotary as a focus area. He expects all Rotarians should work on the same as the thrust area. You are fortunate presidents as you are rendering your services during a significant year of 100 years of Rotary in India. So in future you will be known as the Centennial President. I, along with my better half, congratulate you on this installation day. My wishes are with you. I pray to the Almighty for a successful and satisfying Rotary year. Rotary connects the world for you all and your team. Rotary expects to be human by human with every human, and I expect you will stand to this expectation. Thank you very much, Rotarian Suhas and Rotarian Sunita. तर हा होता आपल्या सन्माननीय डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर रोटरियन सुहास वैद्यांचा मेसेज. हा एक ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रोल आहे. असिस्टंट गव्हर्नरनी इन्स्टॉलेशनला केवळ डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नरचा मेसेज पास ऑन करायचा आहे. पण केवळ ह्याच क्लबला मला अशी संधी मिळते कारण ह्या क्लबचा मी एक ॲडवायझर देखील असल्यामुळं, गव्हर्नर स्पेशल रिप्रेझेंटेटिव्ह असल्या कारणाने थोडंसं मेसेज सोडून देखील आज मी बोलू इच्छितो. आज एक आनंदाचा क्षण आपण सर्वच उपस्थित इथे अनुभवत आहोत. कारण हा इवलासा जो रोप होता रोटरी क्लब ऑफ सोलापूर सिद्धिग्राम हे आता
3ऱ्या वर्षात पदार्पण करत आहे. तर ह्यासाठी मी जे माजी अध्यक्ष आहेत रोटरियन आशिष यांना मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी पहिल्याच वर्षी खूप चांगले उपक्रम घेतले. लोकउपयोगी आणि समाजोपयोगी असे उपक्रम घेऊन आपल्या क्लबचं नाव उंचावला आणि रोटरीची पब्लिक इमेज देखील वाढवली. रोटरी सर्व्हिस अबाउट सेल्फचा उत्तम उदाहरण त्यांनी दाखवून दिला. आणि जे ह्या वर्षीचे नवीन अध्यक्ष आहेत त्यांनी देखील खूप छानसा प्लॅन आता सादर केलेला आहे. ॲक्च्युअली ह्या क्लबची सुरुवात गेल्या वर्षी 2018मध्ये ज्यावेळेस फेब्रुवारीच्या महिन्यात आम्ही रोटरीचं कॉन्फरन्स अटेंड करण्यासाठी तिरुपती येथे गेलो होतो. तर आशिष त्यावेळेस फक्त एक अटेंडी होता, नॉन रोटरियन म्हणून तो आला होता. आणि असंच गप्प्यातून एक विषय निघाला की आपण रोटरीची आणखीन एक शाखा सोलापुरात सुरू करावी. आणि परतीच्या प्रवासात जवळपास ते पूर्णत्वाला आलं आणि आल्या आल्या आम्ही ह्या कामासाठी सुरुवात केली. जवळपास 110 लोकांना आम्ही भेटलं आणि त्यातून फिल्टरेशन करून 20 चांगले रोटरियन्स ह्या क्लबला दिले. आणि यावर्षी देखील 10 ते 15 नवीन मेंबर्स या क्लबला जॉईन होणार आहेत. तर या सर्व कार्यासाठी अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. सध्या वर्ल्ड कपचं सीझन आहे आणि आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की भारताचा कर्णधार अगदीच जोशात आहे. एक सामना सोडलं तर सर्वच सामने जिंकलेला विराट कोहली, तसेच ह्या क्लबचा जो विराट कोहली आहे तो आपला अमर उदगिरी आहे. आणि नुकताच एक इंटरव्ह्यू आलं होतं विराट कोहलीचं की 20,000 रन्स तू पूर्ण केलेलं आहेस, काय वाटतं. तर विराटने असं उत्तर दिलं की हे आता सुरुवात आहे, माझा उद्देश 30,000 आणि 40,000 धावांचे आहे. मग त्या रिपोर्टरने एक मिश्किल असा प्रश्न टाकला की ह्या क्रिकेटमध्ये पदार्पण केल्यानंतर तू इतका गर्भश्रीमंत झाला, तुझ्याकडे BMW आहे, मर्सिडीज आहे, ह्याबद्दल तुला काय वाटतं ह्या प्रसिद्धीबद्दल. तर विराटने एक सिंपल उत्तर दिलं की माझ्याकडे BMW असेल, लॅम्बोर्गिनी असेल, सगळे संपत्ती असेल, पण ज्यावेळेस मी मैदानात उतरतो तर धावा करण्यासाठी मलाच धावावं लागतं. तर इथे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आहेत, तू माहिती तंत्रज्ञानमध्ये एक्सपर्ट आहेस, पण सुरुवात धावण्याची तुलाच करायची आहे. तू किती वेगाने धावशील तितक्याच वेगाने तुझा बोर्ड तुझ्यासोबत राहील. महेंद्रसिंग धोनी ज्याचा आज 38वा वाढदिवस आपण साजरा करतोय, सकाळपासून व्हॉट्सअपवर सुरू आहे की भारताचा सर्वात यशस्वी कर्णधार तो आहे. हे सगळ्या गोष्टी का बोलते, मी स्वतः एक क्रिकेटर आहे आणि दररोज क्रिकेटमध्ये असतोच मी. तर धोनीने देखील खूप असे लिडरशिप क्वालिटीज गेल्या 10-12 वर्षात आपल्यासमोर ठेवलेलं आहे. कॅप्टन कूल म्हणून तो आहे. तर वर्षभर तुला एक कॅप्टन कूल म्हणून राहायचं आहे. माझं हे अध्यक्षीय भाषण नाही आहे, आपले DGE आपल्याला प्रबोधन देणार आहेत. हे केवळ माझं काही ॲडवायजेस आणि मनोगत आहे. शांत राहायचं आहे, वर्षभर फॉलो करायचे आहेत. खूपशा गोष्टी आपल्याला माहीत असून देखील नसल्यासारखं भासवून लोकांकडनं काम करून घ्यायचं. रोटरी हे एक सिरियस बिझनेस आहे आणि त्याला सिरियसलीच घ्यायचं आहे. वेल ॲडमिनिस्ट्रेटेड, जगातली सर्वात मोठी नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन आहे. तर याचं इमेज टिकवण्यासाठी आपण तितक्याच चांगल्या पद्धतीनं ॲडमिनिस्ट्रेशन ठेवायचं आहे. वर्षभरातले सर्व 52 मीटिंग घ्यायचे आहेत, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरचे मीटिंग घ्यायचे आहेत, फॅमिलीला एकत्रित आणायचं आहे. रोटरीचे जे डिस्ट्रिक्ट गोल्स आहेत, क्लबला दिलेले गोल्स आहेत, ते फॉलो करायचे आहेत आणि त्याच अनुरूप कार्य करायचं आहे. प्लॅनिंग तर खूप चांगलं केलेलं आहे अमरनी, पण केवळ प्लॅनिंगने आपल्याला सक्सेस मिळत नाही. वेन यू इम्प्लिमेंट अँड एक्झिक्यूट युअर प्लॅनिंग देन इट कन्वर्ट्स टू सक्सेस. जर तुम्हाला यश मिळवायचं असेल तर तुमचं प्लॅनिंग अंमलात आणायचं आहे आणि त्या प्रॉपर पद्धतीनं पूर्णत्वाला न्यायचं आहे. मी अशा एका वित्तीय संस्थेत आहे जे जगातलं सर्वात श्रीमंत संस्था आहे, लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. माझ्या ओळखमध्ये
त्याचा उल्लेख झालेलाच आहे. LICमध्ये खूप पूर्वी एक ब्रीद वाक्य होतं की कार्य कठिन है इसीलिए करने योग्य है, जबकि साधारण कार्य तो सभी करते हैं. एखादा मंडळ, एखादं समाजाचं संस्था असेल तर तिथं अध्यक्षपद घेऊन ते उत्तम पद्धतीनं करणं कम्पॅरेटिव्हली सोपं आहे, कारण इथं रोटरियन्स म्हणजे सर्वच आपापल्या क्षेत्रातले दिग्गज असतात. अशा दिग्गज मंडळींकडून वर्षभरात काम करून घेणं म्हणजे एक कसरत आहे, एक कठीण कार्य आहे, पण ते तुम्हालाच करायचं आहे, कारण अवघड काम हे रोटरियन्स नेहमी लिहिल्या पद्धतीनं सोपे करून दाखवत असतात. रोटरी जवळपास आता जास्त करून मॅथमॅटिक्सवर काम करतं. मेंबरशिप डेव्हलपमेंट असेल, TRFचं कॉन्ट्रीब्युशन असेल, तर माझं एक ॲडवाईज असं असेल की तुम्ही ह्या वर्षात तुमची क्लबची सदस्य संख्या 50च्या वर तरी किमान न्यायला पाहिजे. एक प्रसिद्ध लेखकाने म्हणलेलं आहे की विनर्स डोंट डू डिफरंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरंटली. तर आपलं रोटरीचंच काम करायचं आहे, पण वेगळ्या पद्धतीने करायचं आहे आणि याच्यात जिंकून दाखवायचं आहे. मी सदैव ॲज अ GSR तुमच्या सोबत तर आहेच, ॲसिस्टंट गव्हर्नर यावर्षी आहे. मी DGंना रिक्वेस्ट केलं होतं की ह्या क्लबचं मी GSR आहे, तर मला ह्याचं ॲसिस्टंट गव्हर्नर करू नका, इतर AGलाही संधी द्या, कारण मी तर नेहमी भेटत असतो. पण DGंनी म्हणलं की तुम्ही करा हे काम. तर मी जरी GSR असलो तरी ॲसिस्टंट गव्हर्नर म्हणून वर्षभरात जे 6 असेंब्ली घ्यायचे ते आपल्याला सिरियसली घ्यायचं. जाता जाता असं मला इथे अमर आणि त्यांच्या सगळ्या बोर्डला एक काही असे मेसेज पास ऑन करायचं की खूप वर्षापूर्वी वृत्तपत्रात असं यायचं की इंडिया इज इन अ डू ऑर डाय सिच्युएशन, आजचा सामना जिंकायचंच आहे, करा किंवा मरा अशी परिस्थिती आहे. नंतर अशी संकल्पना आली की डू बिफोर यू डाय, की मरायच्या आधी हे करायचंच आहे. आणि आजच्या या कॉम्पिटिशनच्या युगात ते दोन्ही स्लोगन्स सुधारित करून त्याला डोंट डाय बिफोर यू डू, म्हणजे आपण ठरवलेलं काम पूर्ण करायच्या आधी आपल्याला एक्झिट करायचं नाही आहे. तर हे तुम्हाला निरंतर येत्या 358 दिवस तुमचे शिल्लक आहेत, त्या 358 दिवसात तुम्हाला हे फ्युचर प्लॅन्स पूर्ण करायचे आहेत. क्लबची प्रतिमा उंचवायची आहे, आपलं लिडरशिप क्वालिटीज दाखवायचे आहेत आणि जे ऑल ओव्हर डिस्ट्रिक्टमध्ये 11 जिल्ह्यात जे आपलं डिस्ट्रिक्ट पसरलेलं आहे त्याच्यामध्ये नावलौकिक मिळवायचं आहे. नवीन क्लब आहे, एन्थुझियास्टिक मेंबर्स आहेत, त्याचा उपयोग करून घ्यायचा आहे. जाता जाता एक फायटर ह्या विषयावरती मी स्वतःचे काही वाक्य बनवलेले आहेत की जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें है, मंजिलें है तो फासले है, फासले है तो रास्ते है, रास्ते है तो मुश्किलें है, मुश्किलें है तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है की फायटर हमेशा जीतता है. तर तुम्हाला जिंकायचं आहे आणि डिस्ट्रिक्टला दाखवून द्यायचं आहे की नवीन क्लब असून देखील आम्ही खूप काही उच्चांक गाठू शकतो. पुढच्या वर्षीचे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर आज तुम्हाला वक्ते आजचे गेस्ट म्हणून लाभलेले आहेत, तर तुमचे लिडरशिप स्किल्स इतके दाखवा की खूपच कमी वेळात DG सर तुम्हाला डिस्ट्रिक्टमध्ये पण घेतील. तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी माझे मनापासून शुभेच्छा. उपस्थित सर्व मान्यवरांनी मला शांततेने ऐकलं त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. ज्याप्रमाणे गेल्या वर्षीपर्यंत आम्हाला सपोर्ट केलेला आहे त्याच वर्षी यावर्षी तसंच सपोर्ट करा. नक्कीच आम्ही तुमचे मार्गदर्शन घेऊन जे काही प्लॅन केलेले आहेत ते 100% करायचं मी नक्की ट्राय करेन. आणि नवीन मेंबर पण जवळपास 50पर्यंत नक्कीच आणून दाखवेन मी. यानंतर मेन गेस्ट DGE हरीश मोटवानी सर, मी यांना विनंती करतो की त्यांचाही त्यांनी मनोगत व्यक्त करावे इथे. Thank you, Kshirsagar sir, for kind words about me.
incoming President Amar Udgiri, First Lady Lakshmi, Secretary Shivanand Hiremat and Uma, Assistant Governor Rakesh Udgiri, outgoing President Ashish Upadhyay, all district officers, presidents of different clubs, dignitaries of the Solapur city, and fellow Rotarians and my friends. I welcome all of you for the installation of a very enthusiastic young club of only 1 year old. सबसे पहले मैं नए प्रेसिडेंट अमर, शिवानंद, उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टीम को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने आज नए साल का पदभार स्वीकारा है। आने वाले साल के लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट। मुझे खुशी है कि केवल 1 साल में इस क्लब ने वह कर दिखाया है जो पुराना क्लब भी नहीं कर सकता। आपने प्रोफेशनल डे सेलिब्रेशन किया, माणुसकीची भिंत, यह एक अनोखा प्रोजेक्ट आपने किया जिसका उल्लेख इसके पहले किसी ने नहीं किया। द रोटरी फाउंडेशन को भी आपका कंट्रीब्यूशन दिया है आपने। हेल्थ चेकअप कैंप में मैंने देखा 431 बेनिफिशियरीज एक ही कैंप में उन्होंने उसका फ़ायदा लिया। और एक अनोखा आपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट किया है, कॉरपोरेट प्रीमियर लीग, एक क्रिकेट मैच जिसमें आपने संदेश भी दिया था, सेव और पोलियो का आपने संदेश दिया था। बहुत बहुत मुझे खुशी होती है कि ऐसा छोटा क्लब, यानी पहला ही साल है और इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने लिए हैं। उसके बाद आपने रोड शो किया है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी, आपका शानदार प्रदर्शन आपने किया है उसमें। मुझे लगता है असिस्टेंट गवर्नर और क्लब एडवाइज़र राकेश उदगिरी, इन्होंने पिछले वर्ष जो गाइडेंस दिया है उसकी बदौलत यह काम हुए हैं। और मुझे कहने के लिए कहना पड़ रहा है कि उनके दादाजी आज आईसीयू में हैं और बहुत सीरियस है। उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर अटेंडेंस दिया, एक कमिटमेंट उन्होंने दिया है। इसके लिए उनके लिए ज़ोरदार तालियां। एक अकेले का काम नहीं होता, पूरा टीम उसके लिए काम करना चाहिए। एक यंग डायनेमिक टीम आपको सोलापुर सिद्धिग्राम को मिली है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशीष हो, चाहे अमर हो, चाहे शिवानंद हो, विजय कुमार शिंदे हो या क्षीरसागर सर हो, संजय टापरे हो, सभी मेंबर्स बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं और इसकी बदौलत मुझे आशा है कि अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट लेकर इस क्लब को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर एक्सटेंडिंग योर क्लब टू सच अ ग्रेट हाइट। नया क्लब होने की वजह से आपकी तरफ काफ़ी उम्मीदें हैं डिस्ट्रिक्ट की, और मुझे विश्वास है कि आप एक अलग पहचान हमारे डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे। जो न्यू अमर और आशीष और अमर ने जो नींव रखी है क्लब की, एक मजबूत नींव, उसको ही कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रेसिडेंट अमर और शिवानंद और उनकी टीम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर। दोस्तों, मुझे शेयर करने में बहुत खुशी होती है कि नया क्लब होने के बावजूद भी 40% मेंबर्स आपके ऑनलाइन रजिस्टर्ड है माय रोटरी वेबसाइट पर। क्या बात है! ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे क्लब के लिए, क्योंकि ऑनलाइन होने की वजह से हमें पूरी जानकारी मिलती है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हमारा क्लब क्या कर रहा है, वो लोगों को भी पता चलता है। जैसे कि ऑनलाइन टूल्स के ज़रिए हम रोटरी क्लब सेंट्रल पर हमारे रिपोर्ट्स अपलोड कर सकते हैं, या कोई भी क्लब, दुनिया का कोई भी क्लब हो,
उसके रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं कि आपके कितने मेंबर हैं, कितने छोड़कर गए हैं, पूरा डाटा हमें वहाँ से मिल सकता है। हर एक मेंबर उससे देख सकता है। हमारे जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं हम उसे अपलोड करके शोकेस कर सकते हैं। हमारे कुछ आइडियाज़ होंगे, रोटरी आइडियाज़ में हम शेयर कर सकते हैं। और रोटरी लर्निंग सेंटर एक उसमें टूल है जिसमें हमारा जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, सभी के लिए वहाँ पे लर्निंग एक सेशन रहता है। वहाँ पर हम जाकर अपना लर्निंग खुद कर सकते हैं और हमारा क्लब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ब्रांड सेंटर है, रोटरी रिवार्ड्स है, जिसमें हम रोटरियंस को और रोट्रैक्टर्स को काफ़ी सारे ऑनलाइन शॉपिंग पर डिस्काउंट दिए जाते हैं। डिस्कशन ग्रुप में आपके कुछ मेंबर्स ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। उसमें इतना फैंटास्टिक ऑनलाइन है, इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी मेंबर्स आप ऑनलाइन अकाउंट बना दीजिए माय रोटरी पर, उससे सभी मेंबर्स का बेनिफिट होगा। और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे आने वाले साल तक यानी 2021 तक पूरा क्लब ऑनलाइन होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास कोई अच्छा दोस्त है और उसे एक अच्छी गिफ्ट देनी है तो उसे रोटरी में लाइए, रोटरी में इनवाइट कीजिए। मुझे याद है 22 साल पहले मुझे डॉक्टर राजीव उनाड़े ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी, इनवाइट किया था रोटरी में और मैं ज्वाइन हो गया था। और यह अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ तक लेकर आई है और मुझे जिसने लाया है, मुझे आज क्या, मुझे ज़िंदगी भर याद रहने वाला है कि डॉक्टर राजीव उनाड़े ने मुझे लाया था रोटरी में। यह एक बेमिसाल नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे ही आप इसमें नए लोगों को कनेक्ट करेंगे, वे एक बेमिसाल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे जिसमें 12 लाख रोटेरियंस दुनिया भर में हैं और वे 12 लाख रोटेरियंस एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। हम कहीं भी जाएंगे, हमें कुछ दिक्कत आएगी, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो हमें रोटरी, हमारा दोस्त वहाँ पर मदद करने के लिए तैयार रहेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। इस वर्ष कुछ 2-3 महीना पहले हमारे एक पूना के रोटरियंस का एक्सीडेंट हो गया शिमला साइड में, और मेरे वक्त की जो गवर्नर है रश्मि कुलकर्णी, उन्होंने हमारे ग्रुप पर मैसेज डाला कि इस जगह पर हमारा कोई रोटेरियन एडमिट है हॉस्पिटल में और उसे जाकर यानी उसकी मदद कीजिए। तो केवल 10 मिनट में वहाँ के जो गवर्नर थे रमेश बजाज, उन्होंने 10 ही मिनट में उसकी इंक्वायरी निकाली पूरी और बताया कि ये हॉस्पिटल में आपका दोस्त या आपका परिवार का कोई सदस्य है और अभी ठीक है, खतरे से बाहर है। इतना बढ़िया नेटवर्क हमें कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों। और छोटा मोटा एक्सपीरियंस तो सभी ने लिया ही होगा। कुछ रोटेरियंस हमारे केरल में गए थे, वहाँ पर कुछ दिक्कत आई थी, टेक्निकल दिक्कत आई थी, तो वहाँ के रोटेरियंस ने उन्हें मदद की थी। हमारा जो रोटरी है, हमारा जो कार्य है वह एक डिसिप्लिन से जाता है। वेल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत हमारा काम चलता है। बिल्कुल हम रोटेरियंस फोकस्ड है। एक बार क्या हुआ दोस्तों, आइंस्टाइन एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट ट्रेन से जा रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर टीसी आए टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही वे आए, कुछ इधर उधर देखने लगे, आइंस्टाइन टटोलने लगे कुछ, पर उन्हें रिकॉग्नाइज किया टीसी ने कि यह एक महान साइंटिस्ट है आइंस्टाइन। वहाँ पर गए आइंस्टाइन के पास और उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन, इफ़ यू हैव नो टिकट देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अगर टिकट नहीं है तो मैं आपको पहचानता हूँ, आप आइंस्टाइन हो। पर आइंस्टाइन ने जवाब दिया, नो नो ऑफिसर, टिकट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम इज़ वेयर आई एम गोइंग। मुझे कहाँ जाना है यही पता नहीं है मुझे। तो हमारे साथ भी यही होता है, बहुत सारे वक्त हमें कहाँ जाना है वो पता नहीं होता, पर हमारा रोटरी जो है वो फोकस्ड है पूरे अपने काम के लिए, और 6 फोकस एरिया पर हम काम करते हैं। जैसे कि प्रोमोटिंग पीस, जागतिक शांतता के लिए हम काम करते हैं। फाइटिंग डिसीज़ के लिए जो हेल्थ चेकअप आपने कैंप लिया उसके लिए हम काम करते हैं।
प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, पानी, स्वच्छता और हाइजीन के लिए हम काम करते हैं। सेविंग मदर एंड चाइल्ड, जो मॉर्टेलिटी है बच्चा और माँ के यानी बर्थ के इसमें जो मॉर्टेलिटी उसका कम करने के लिए हम काम करते हैं। सपोर्टिंग एजुकेशन, लिटरेसी में हम काम करते हैं। और उसके बाद ग्रोइंग लोकल इकोनॉमिक, हम लोगों का जीने का स्तर बढ़ाने के लिए उसे अपने पैरों पर कैसा खड़ा हो, इसके लिए हम कार्य करते हैं। यह 6 फोकस एरिया पर रोटरी निर्भर है और हम उसी पर ज़्यादा कार्य करते हैं। और 7वां जो एरिया है हमारा डिज़ास्टर रिस्पांस, जहाँ पर भी नैसर्गिक आपदा आती है वहाँ पर रोटरी पहले जाकर खड़ा होता है। ऐसे हमारे फोकस्ड प्रोग्राम्स हैं। आज कुछ नए सदस्य हमारे सिद्धिग्राम क्लब में आए हैं, उसके लिए मैं अमर, शिवानंद और उनकी मेंबरशिप टीम का कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि नए मेंबर्स लाना इतना मुश्किल है कि जैसे हम ढूंढते हैं हमारी बेटी के लिए अपना दामाद ढूंढते हैं या अपने बेटे के लिए बहू ढूंढते हैं, इतना मुश्किल है काम, क्योंकि हमें ज़िंदगी भर साथ निभाना होता है और हमारे मेंबर्स का साथ हमारा कंटिन्यूस रहना चाहिए अंत तक। और नए मेंबर से भी मैं कहना चाहूँगा कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है समाज सेवा करने की और अपना स्तर ऊंचा करने की। इसके लिए आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और कार्य कीजिए। हमें काम कर जो सुकून मिलता है वह हम लाखों रुपए खर्च करके भी हमें नहीं मिलता, तो इसलिए कार्य करते रहिए। पॉल हैरिस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे रोटरी के फाउंडर है। उन्हें जब वे शिकागो आए थे और तब यंग लॉयर थे, नए नए आए थे शहर में, तो उन्होंने 1905 में रोटरी क्लब की स्थापना की थी। उन्हें लगा था कि इसकी वजह से हमें नए शहर में कुछ कनेक्शंस मिलेंगे, कुछ लोगों के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा, और हुआ भी वही। अभी हम देखते हैं कि 100 साल से ऊपर हो गए, तो हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो कनेक्शन है, वह पूरी दुनिया में फैल चुका है। 200 से ज़्यादा देशों में हम कार्य कर रहे हैं। यह शायद हमारे जो फाउंडर है पॉल हैरिस, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतना विशाल हमारा नेटवर्किंग होगा, इतना बढ़िया कनेक्शन होगा। यही सोचकर शायद हमारे RI प्रेसिडेंट इस वर्ष के, उन्होंने थीम रखी है रोटरी कनेक्ट्स द वर्ल्ड। यह कनेक्शन वर्ल्ड होने की वजह से हम अच्छे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स ले रहे हैं, अच्छे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी कर सक रहे हैं। मार्क मेलोनी का संदेश यही है कि हमारी कम्युनिटी से, हमारे समाज से कनेक्ट हो जाइए और अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट कीजिए। जिन्हें हमारी ज़रूरत है वहाँ तक जाइए और उनसे कनेक्ट हो जाइए। इंटरनेशनल प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के जरिए दुनिया के रोटेरियंस से कनेक्ट हो जाइए। जैसा कि हमने पल्स पोलियो में रोटरी ने जो पुढ़ाकार लिया था, आगे आकर जो काम किया था 1985 से लेकर आज तक, और उसका उच्चाटन किया था, केवल 2 देशों में अभी बची है। रोटरी अग्रेसर होकर काम करती है। ऐसा ही कोई नया विषय लेकर आइए, हमारे जो टैलेंट है और कुछ न कुछ नया करने के लिए हम कनेक्ट हो जाइए, ऐसा उन्होंने संदेश दिया है। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक कारपेंटर था 60 वर्ष का, वह रिटायरमेंट चाहता था क्योंकि अब थक चुका था, 40 वर्ष की उसकी सर्विस हो चुकी थी। इसलिए वो बॉस के पास जाता है और बोलता है कि मुझे रिटायरमेंट चाहिए और मैं बाकी बीता हुआ वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ और उनके बच्चों के साथ मैं बिताना चाहता हूँ। मालिक भी अच्छा रहता है, वह मान जाता है, पर जाते जाते बोलता है कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट रह चुका है, वह कंप्लीट कर लो, फिर हम आपको अच्छी सी गिफ्ट देंगे आपको और अच्छे से आपका रिटायरमेंट सेलिब्रेट करेंगे। बेमन से वह मान जाता है और कार्य शुरू कर देता है। अच्छे से अच्छा घर बनाने वाला, अब तक उन्होंने काफ़ी सारे घर बनाए थे,
जो बहुत ही बढ़िया दुनिया के अच्छे घरों में गिना जाता था, वो कारपेंटर अभी बेमन से काम कर रहा था और अच्छे से कार्विंग नहीं कर पा रहा था, पॉलिशिंग नहीं कर पा रहा था। तो बेमन से उसने लगभग 2.5 महीने में वह कंप्लीट किया और अपने बॉस के पास गया कि घर कंप्लीट हो चुका है। बॉस निकलते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए और जाते हैं, कुछ दूरी पहले वे रुक जाते हैं और उस बंगले की चाबी, उस घर की चाबी उस कारपेंटर को देते हैं कि यह तेरी मेहनत का 40 साल की मेहनत का फल है और यह चाबियाँ, यह घर आज से तेरा हो गया। क्या बीती होगी दोस्तों उस कारपेंटर पर कि अच्छे से अच्छा घर दूसरों के लिए उसने बनाया, पर जब खुद का घर उसने बनाया तो बेमन से बनाया और अच्छा नहीं बनाया था। इसलिए उसको उसके ऊपर बीत रही थी और बोल रहा था कि काश मुझे पता होता तो मैं अच्छे से अच्छा काम करके उसको बहुत ही खूबसूरत बनाता था। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कल अच्छा होने के लिए आज अच्छा काम करते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, और हम में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काश करते रहते हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए था। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है जैसा कि जीपीएस में हम डेस्टिनेशन डालते हैं तभी वो डायरेक्शन देना चालू करता है, अमर ने भी अपने डेस्टिनेशन जीपीएस में डाल दिए हैं और सभी कार्य वो करेगा, अच्छे से करेगा जैसा कि कारपेंटर नहीं कर पाया था। और उसका डेस्टिनेशन होगा 30/6/2020। सभी कार्य उसको उसकी डायरेक्शन उस समय पर वहाँ पर जीपीएस से मिलती रहेगी। यह वर्ष वैसे तो 19-20 है, पर हमारे कार्य में 19-20 नहीं चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अमर पूरा काम 20-20 ही कर बताएगा। नया क्लब है इसलिए मैं सजेशन देना चाहूँगा आपके क्लब के लिए कि आपकी मेंबरशिप, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 100% ऑनलाइन होनी चाहिए और मेंबरशिप बढ़नी चाहिए। राकेश ने भी आपको सजेस्ट किया है, क्योंकि मेंबरशिप जैसे बढ़ेगी आपके काम करने के हाथ बढ़ जाएंगे और आप अच्छे से अच्छा कार्य कर सकेंगे। दोस्तों, रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप सभी को पता है, तो इसलिए इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में भी आपका पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। जैसा रोटरी फ्रेंडशिप एक्सचेंज एक बहुत ही बढ़िया फ्रेंडशिप एक्सचेंज का प्रोग्राम है, जिसमें फैमिलीज एक्सचेंज होती है। दूसरे देश के लोग हमारे पास आते हैं और हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं। तो एक बढ़िया प्रकल्प है, प्रोग्राम है रोटरी का, उसका लाभ लीजिए। रोटरी कम्युनिटी कॉर्प्स दूसरा एक प्रोग्राम है। तीसरा है पीस फेलोशिप। हम यूथ के लिए भी कुछ कार्य करते हैं, जैसा रोटरी यूथ एक्सचेंज है, रायला है, न्यू जनरेशन एक्सचेंज है। ऐसे नए नए जो उपक्रम है वो आपके क्लब ने, यानी जितना हो सके, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे प्रोग्राम्स लेने हैं, पर जो हो सके उसमें पार्टिसिपेट करके अपना क्लब का नाम ऊंचा करिए। जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप सभी से मैं बोलना चाहूँगा कि हमें रोज़ अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि हम उन गिने चुने 5% लोगों में से हैं जिनके पास सभी सुविधाएं हैं। हमारा घर है, गाड़ी है और फ्रिज है, एसी है, सभी कुछ है हमारे पास। तो रोज़ एक ना एक अच्छा काम हमने करना चाहिए। पर हमारे जो काम की शुरुआत है, अच्छे काम की शुरुआत है, वह बिज़नेस से होनी चाहिए। अच्छी सर्विस हम देनी चाहिए और अच्छा क्वालिटी हमने अपने कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट्स हमने देनी चाहिए। और जब हम रास्ते से जाते हैं, किसी को, गरीब को चप्पल नहीं देखी तो उसे चप्पल देनी चाहिए, या भूखे को रोटी खिलानी चाहिए। रोज़ ऐसा छोटा मोटा काम हमने करना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। और अगर दिन भर में हमें कोई अच्छा काम करने को नहीं मिला तो घर पर जब जाएंगे तब हम अपनी बीवी की तारीफ तो ज़रूर कर सकते हैं। कह सकते हैं कि यार कितना अच्छी ड्रेस आपने पहनी है, देखिए महिला वर्गों में कितनी खुशी आ चुकी है। बस एक छोटा सा काम रहता है, पर हम अगर करेंगे तो खुशियां हमारे घर में अपने आप आ जाएगी।
एक बार अब्राहम लिंकन अपने पूरी फौज के साथ रास्ते से जा रहे थे। वो अपनी वो बग्गी में थे, बैठे थे। जब जाते जाते सामने एक खरगोश आया, वहाँ पर बैठा हुआ था और उसके ऊपर से जाने ही वाली थी बग्गी। तो अब्राहम लिंकन ने उन्हें रुका दिया और नीचे उतरकर उन्होंने पहले खरगोश को पास में लिया, उसको अच्छे से सहलाया और रोड के बाजू में कर दिया और बाद में फिर बैठ गए बग्गी में और बग्गी आगे निकल गई। किसी ने पूछा कि आप तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो एक खरगोश के लिए आपने वो बग्गी रुकाई और सारी फौज को रुका दिया। तो अब्राहम लिंकन का जवाब था, कोई बात नहीं, मैं अगर राष्ट्रपति हूँ, मैं उस खरगोश के ऊपर से मेरी बग्गी चला सकता था और वो बेचारा मर जाता था। और जब मैं घर जाता था, रात होती थी, तो मैं सुकून से सो नहीं पाता था। यह एक बड़ी बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अच्छा काम अगर करेंगे तो सुकून हमें जो हासिल होगा वह कई गुना ज़्यादा होगा, जो हम लाखों रुपए खर्चा करके भी नहीं पा सकते। आपकी फेलोशिप बढ़ाइए, यह मैं गुजारिश करूंगा। अपना प्रेफरेंस स्टाइल इस तरह से रखिए, अपनी फैमिली को ज़्यादा समय दीजिए, अपने बिजनेस को समय दीजिए और बचा हुआ समय आप रोटरी के लिए दीजिए, ऐसा मैं आपको सजेशन करूंगा। पर आपके पास जो पोस्ट है उसको सही ढंग से आप उसका क्लब को बढ़ाने में आपका सहयोग आप ज़रूर दीजिए, यह मैं आपसे कहना चाहूँगा। मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरा सम्मान किया और बोलने के लिए 2 शब्द जो संधि उपलब्ध करवाई, इसके लिए मैं रोटरी क्लब सोलापुर सिद्धिग्राम का बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके बाद जब भी कभी ज़रूरत पड़े मुझे याद करना। आई विल बी विथ यू ऑलवेज। ऑल द बेस्ट सिद्धिग्राम क्लब एंड थैंक यू। थैंक यू सर। और इसके बाद मैं सेक्रेटरी को शिवानंद हिरेमठ सर को इनको कहता हूँ कि वो आभार प्रदर्शन कर। तर आपल्या याच्यामध्ये एक गेस्टचा आपण सत्कार करायचा राहिलेला आहे। ते गेस्ट आहेत किरण कोल्हापुरे सर। मी गोविंदे सरांना विनंती करतो की त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार। गोविंदे सर रोटरी क्लब ऑफ सोलापूर सिद्धिग्राम याच्या इन्स्टॉलेशन सेरेमनीसाठी आज आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून लागलेले आहेत DGE हरीश मोटवानी सर। हे ॲक्च्युली बीडवरून आलेले आहेत आणि त्यांनी आपला मोलाचा वेळ आपल्या क्लबसाठी दिलेला आहे आणि त्यांनी जे काय सजेशन्स दिलेले आहेत ते आम्ही या वर्षामध्ये पार करू। त्यांनी आज वेळात वेळ काढून इथे आले, आपल्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले, त्याबद्दल त्यांचा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। त्यानंतर आपले क्लबचे GSR मार्गदर्शक दिशादर्शक राकेश उदगिरी सर, ज्यांच्या घरी आज मेडिकल कंडिशनमध्ये त्यांचे आजोबा असताना सुद्धा त्यांनी वेळात वेळ काढून आपल्या इथे आले, त्यांचेही मी मनपूर्वक आभार मानतो। त्यानंतर आमच्या क्लबचे इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेंट श्री आशिष उपाध्यायजी, त्यांनी मागच्या वर्षामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे कार्य केलेलं आहे। त्यांनी फक्त एक वाक्य आहे की कर्म कर फल की चिंता मत कर, हे ठेवून त्यांनी आजपर्यंत सर्व ॲक्टिव्हिटी म्हणा आमच्या क्लबला एकत्रित आणून खूप चांगल्या पद्धतीने काम केलेलं आहे। मला वाटतं पहिल्या वर्षामध्ये की कुठल्या क्लबचं केले माहीत नाही, परंतु आमच्या क्लबने तर भरपूर ॲक्टिव्हिटी केल्या आहेत। त्याच्यामध्ये त्यांचं मोलाचं सहभाग आम्हाला लाभलेला आहे, मोलाचं सहकार्य आम्हाला लाभलेलं आहे। कुठल्याही ॲक्टिव्हिटीला क्लब मेंबरला गोळा करून त्यांच्याकडून काम करून घ्यायची एक धमक आशिष उपाध्याय सरांमध्ये आहे आणि आम्ही त्यांच्या ह्याच्यामध्येच पुढं चांगले काम करू हे आम्ही एक आशा व्यक्त करतो। त्यांचाही मी आभार व्यक्त करतो। त्यानंतर आपल्या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व क्लबचे अध्यक्ष सचिव वेळात वेळ काढून आले, त्यांचेही मी आभार व्यक्त करतो। त्यानंतर ॲनेट्स यांचंही मी आभार व्यक्त करतो। मगाशी याच्यामध्ये एक गोष्ट राहून गेलेली आहे की आपले अध्यक्ष अमर उदगिरी यांच्या मिसेस लक्ष्मी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी डायसवरती यायचं आहे आणि मी आजच्या अध्यक्ष आपले चीफ गेस्ट जे आहेत मोटवानी सर यांना विनंती करतो की त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करायचा आहे।